Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last session, we studied ideal gas definition and ideal gas laws like Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. Okay. After that, we studied Avogadro's law. Okay. In Boyle's law, temperature constant, so pressure is inversely proportional to volume. In Charles law, pressure is constant, so volume is directly proportional to temperature. In Gay-Lussac law, volume is constant, so pressure is directly proportional to temperature. After that, we studied Avogadro's law. Okay, in Avogadro's law, at constant volume of different gases at same pressure and temperature contain same number of molecule. That is a Avogadro's law. Okay, after that, we studied the characteristics gas equation PV equal to mRT. P stands for pressure, V stands for volume, M stands for mass of the gas, R stands for gas constant, and T stands for temperature of the gas. Here R is the gas constant which is different for different gases. Okay, now next term is the universal gas constant. Okay, now universal gas constant is what? Okay, now universal gas constant, it is defined as the product of particular gas constant and the molecular weight of the gas is constant, that is equal to 8314. This constant is called as a universal gas constant. Okay, that is denoted by Ru, universal gas constant. As we know, gas constant is defined by term designated by term R. So universal gas constant designated by term Ru. Okay, and universal gas constant value is constant 8314, 8314. Unit is same, joule per kg Kelvin, joule per kg Kelvin. Okay, this is the unit for gas constant and also for universal gas constant. Okay, then universal gas constant is defined by the term defined by product of molecular weight of the gas into particular gas constant. If we consider oxygen, then molecular weight of oxygen is 32 because oxygen atomic weight is 16, O2 stands for 32, so molecular weight of oxygen is 32, and gas constant, that is R of oxygen is 259.8, this is the constant. Then the product is equal to 8314 joule per kg Kelvin, that is universal gas value is constant 8314 joule per kg Kelvin, in which changes only molecular weight and gas constant, and the product is equal to 8314, that is a universal gas constant. So universal gas constant is equal to molecular weight into particular gas constant, that is a R. Okay, this is the universal gas constant. After that, we study specific heat. What is specific heat? Okay, in first unit also we studied specific heat. Okay, specific heat means amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. Okay, that amount of heat is called as a specific heat. Okay, specific heat means क्या है? यूनिट मास, आपका जो यूनिट मास है उसका आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. ओके, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट उस सब्सटेंस को सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट. क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट. ओके, तो सब्सटेंस अलग रहेगा, तो सब्सटेंस के अलग रहेगा तो आपकी स्पेसिफिक हीट हर एक सब्सटेंस की क्या रहेगी? अलग रहेगी. अगर मैंने एयर पकड़ा है तो एयर यूनिट मास लिया और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसकी जो हीट आएगी वो क्या आएगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर. अगर मैंने कंसिडर कर दिया नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन को मैंने यूनिट मास सब्सटेंस को हीट करके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलूँगा मैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो स्पेसिफिक हीट मीन्स क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by 1 degree Celsius is called as a specific heat. Okay, so specific heat is defined as amount of heat required to rise the temperature of unit mass of gas through 1 degree Celsius when it is called as a specific heat. Okay, now there will be two terms, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. Okay, now we start with the specific heat at constant volume. Okay, normal definition will be same, but the process is at constant volume. Means what? The amount of heat required
to raise the temperature of unit mass of substance, unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume, then it is called as a specific heat at constant volume. Okay, now specific heat is designated by term C, capital C. Specific heat is designated by capital term C. Okay, but the specific heat at constant volume, it is designated by CV. What? CV, specific heat at constant volume. Okay, so CV is stands for specific heat at constant volume. It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called as the specific heat at constant volume. That is the CV. Okay, then amount of heat calculated by using formula Q. Heat means Q. Okay, so Q equal to mass of the gas into CV, specific heat of the gas, into temperature rise, that is T2 minus TV. Okay, for constant volume, amount of heat, specific heat at constant volume, so amount of heat required at constant volume Q is equal to, formula क्या आएगा, M mass of the gas into CV, specific heat at constant volume, into temperature rise, that is T2 minus TV. ओके, सो फॉर्मूला आएगा Q इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस टी. ओके, सो अगर CV मैंने जूल में कंसिडर कर दिया तो हीट मेरी जूल में आएगी. ओके, अगर मैंने CV कंसिडर कर दिया किलो जूल पर केजी केल्विन, देन मेरा Q किस में आएगा, किलो जूल में आ जाएगा. ओके, क्योंकि मास केजी में है, बराबर है. स्पेसिफिक हीट किस में है, जूल पर केजी केल्विन. केजी केजी गेट कैंसर इनटू टेम्परेचर जो कि केल्विन में, केल्विन केल्विन कैंसर, सिर्फ बचा क्या, जूल. ओके, सो अगर स्पेसिफिक हीट जूल में होगा तो हीट आपका जूल में आएगा, स्पेसिफिक हीट किलो जूल में होगा तो हीट आपका किस में आएगा, किलो जूल में आ जाएगा. तो ये क्या हो गया, मेरा CV हो गया. ओके, अभी नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम प्रोसेस, सिर्फ क्या लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant pressure, that is called as a specific heat at constant volume. So it is designated by term CP, capital C and P. Okay, that is a CP, specific heat at constant pressure, that is a CP. So amount of heat का formula क्या होगा, Q is equal to mCp into T2 minus T1. Q equal to mCp T2 minus T1. Okay, so CP is a specific heat at constant pressure. Okay, नॉर्मली आपको तीन वैल्यू हमेशा याद रखनी है. ओके, CP, CV और R की. किसकी, एयर. अगर मैंने कंसिडर कर दिया एयर एज अ गैस, नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके एयर के ऊपर रहेंगे. ओके, तो एयर की जो वैल्यूज़ है वो आपको क्या है, हमेशा याद रखने हैं. तो CP की जो वैल्यू है, CP मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो CP की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आपको याद रखनी है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन. 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन. और जो CV की वैल्यू है वो वैल्यू है 0.718, 0.718 नहीं तो 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन. वैल्यू ध्यान में रखना है. CP ऑफ एयर कितना है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन. CV ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, इज इक्वल टू 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन. ओके, नाउ R is a gas constant, so gas constant for air, so R of air is equal to 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन. ओके, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. वैल्यूज CP ऑफ एयर, CV ऑफ एयर एंड R ऑफ एयर. CP ऑफ एयर 1.005, CV ऑफ एयर 0.72 एंड R ऑफ एयर 0.287. ध्यान में रखिए, वैल्यू लिख के रखिए. CP इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, CV 0.718 और 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन, and R of air, that is gas constant of air, is equal to 0.287 kilojoule per kg Kelvin. This is a CP and CV. Okay, now there is a ratio, that is specific heat at constant pressure
divided by specific heat at constant volume, that is called as a adiabatic index. What? Adiabatic index. Adiabatic index is designated by term gamma. So gamma is equal to, it is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume, that is called as a adiabatic index designated by term gamma. So gamma is equal to Cp upon Cv. Okay, Cp upon Cv. Consider the gas is air. Okay, so Cp value is 1.005 and Cv is 0.72. so gamma is equal to what? 1.4 for air. If we consider gas as a air, then gamma value is 1.4. okay, there is a relation between Cp and Cv. Cp minus Cv is equal to R. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. बराबर है. ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. दो रिलेशन है, एक तो गैमा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, दूसरा रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ओके, नाउ वी कंसिडर एयर. एयर का Cp कितना है? 1.005 और Cv कितना है? 0.72. अगर Cp माइनस Cv करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी R की? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन. ओके, तो वैल्यू आपको चार ध्यान में रखना है. एक तो Cp की, दूसरी Cv की, तीसरी R की और फोर्थ गैमा की. गैमा मीन्स एडियाबेटिक इंडेक्स. ओके, तो ये वैल्यूज आपको सबको ध्यान में रखनी है. या हमारे वैल्यू जो है न्यूमेरिकल्स में आने वाली है. ओके, अभी यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, हमें प्रूव क्या कर रहा है. यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. अभी क्या प्रूव करना है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, मैंने क्या किया है? गैस किया है. ओके, गैस का वॉल्यूम जो है मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? कांस्टेंट कर दिया. सॉरी, गैस किया है. गैस एक सिलेंडर में डाल दिया है, उसके ऊपर पिस्टन डाल दिया है. ओके, और उस गैस को मैं क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ. ओके, हीट करूँगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा. बराबर है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? उस गैस को कंटेनर में जिसमें बिठाया है उसका प्रेशर क्या कर रहा हूँ? मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ. अभी प्रेशर कैसे कांस्टेंट कर रहा हूँ? तो उस पिस्टन जो दिख रहा है आपके डायग्राम में, उसके ऊपर मैंने वेट प्लेस किया है. वेट प्लेस करने से क्या होगा? जो भी मेरा वेट नीचे डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है, मतलब प्रेशर जो एक्ट हो रहा है, वो क्या रहेगा? गैस के ऊपर मेरा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मतलब कौन सा लॉ आ गया आपका? चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब क्या है? जब आप उस कंटेनर को हीट करोगे, ओके, प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है. बराबर है. हीट करोगे तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या होगा? आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. बराबर है. तो यहाँ पे क्या किया है? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यूज की है. ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट सप्लाई करने के बाद, तो आपका वॉल्यूम भी क्या होने वाला है? वहाँ पे बढ़ने वाला है. बराबर है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी जो Q होगा, Q मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? M इंटू C. अभी यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है. प्रोसेस कौन सी है? यहाँ पे क्या किया है? गैस मैंने एट कांस्टेंट प्रेशर लगा है. ओके, सो अमाउंट ऑफ हीट रेज रहा कितना होगा? Q इक्वल टू mCp इंटू T2 माइनस T1. T2 क्या होगा? जब मैंने हीट सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा T2, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T1 था. बराबर है. तो अमाउंट ऑफ हीट कितने ऐड हो गए? इज इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू mCp T2 माइनस T1. बराबर है. Q मिल गया. बराबर है. अगर वहाँ पे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होती तो Q की वैल्यू क्या आ जाती? mCv T2 माइनस T1. लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कौन सी है? कांस्टेंट प्रेशर. सो Q की वैल्यू क्या आएगी? mCp T2 माइनस T1. बराबर है. तो Q मिल गया मुझे. ओके, अभी वर्क डन निकालना है. ओके, तो वर्क डन का मैंने फर्स्ट लॉ में बताया था, dW इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dV. प्रेशर इंटू dV बराबर, PdV. dW इज इक्वल टू P इंटू dV. बराबर है. उसको इंटीग्रेट करने के बाद वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1. क्या आएगा? P इंटू V2 माइनस V1. बराबर है. तो प्रेशर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, मेरा इक्वेशन मिला PV2 माइनस PV1. ओके, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या है? P1 इक्वल टू P2 होगा. बराबर है. मतलब P1 V2 P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया. बराबर है. लेकिन गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू MRT. बराबर है. मास ऑफ द गैस तो कांस्टेंट है, R भी मेरा कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एक ही गैस है. बराबर है. सो M कांस्टेंट, R कांस्टेंट.
वेरिएबल क्या बचा टी, ओके, पी वी इक्वल टू एम आर टी, बराबर है। मतलब इक्वेशन क्या आएगा, एम आर टी टू माइनस टी वन, ओके, एम आर कॉमन निकाला, सो वर्क डन का इक्वेशन क्या आया, एम आर ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन आ गया, बराबर है। तो ये इक्वेशन मिल गया। अभी जो इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, क्या है, एम सी वी डी टी, और यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, हीट का, वर्क डन का और इंटरनल एनर्जी का। हीट का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए एम सी पी टी टू माइनस टी वन, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एम सी वी टी टू माइनस टी वन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ओके, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम सी वी टी टू माइनस टी वन, ओके। सो इंटरनल एनर्जी मिल गई एम सी वी टी टू माइनस टी वन, बराबर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस, इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ओके, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आपको क्यू पता है, हीट एम सी पी टी टू माइनस टी वन, यू पता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, और डब्ल्यू पता है एम आर टी टू माइनस टी वन, बराबर है। इन तीनों में टी टू माइनस टी वन कॉमन है, कैंसिल हो गया, मास कॉमन है, कैंसिल हो गया। सो बचा क्या आपका इक्वेशन में, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो आर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सी पी माइनस आर, सी पी माइनस सी वी, ओके। तो ये इक्वेशन मिल गया हमें, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, बराबर है। तो ये रिलेशन मिल गया, ओके। उसके बाद थोड़े रिलेशंस दिए हैं, ओके, वो हम कैसे भी करके मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही है आप में इसमें। एक तो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गैमा एडियाबेटिक इंडेक्स, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, बराबर है। और नॉर्मली फॉर्मूले जो बताएं, फर्स्ट है आपका हीट का फॉर्मूला, ओके, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो फॉर्मूला आएगा एम सी पी टी टू माइनस टी वन, ओके। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो फॉर्मूला आएगा एम सी वी टी टू माइनस टी वन, ओके। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डी वी, ओके। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम सी वी टी टू माइनस टी वन, बराबर है। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ओके। और आर का वैल्यू सी पी माइनस सी वी, गैमा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी, ओके। तो यहाँ पे रिलेशन दिया है, सी पी के ये तीन वैल्यू याद रखने हैं। 1.005 सी पी की वैल्यू है, सी वी की वैल्यू 0.718 है, गैमा की वैल्यू 1.4 है, बराबर है। उसके बाद और एक टर्म आ जाती है आपको निकालने के लिए, एंट्रोपी। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी आ गई थी, इंटरनल एनर्जी, ओके। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एज अ टेम्परेचर डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सिमिलरली इन एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स व्हाट, आपके नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो थर्ड यूनिट का है वो है एंट्रोपी, ओके। अभी सिर्फ बेसिक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एंट्रोपी वैल्यू लगने वाली है। तो एंट्रोपी जो है वो डिजिग्नेटेड बाय यस, कैपिटल एस जो रहता है उससे हम क्या करते हैं, एंट्रोपी को डेजिग्नेट करते हैं। अभी एंट्रोपी मतलब क्या रहता है, एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ डिसऑर्डिनेट ऑफ मोलेक्यूल, डिग्री ऑफ डिसऑर्डनेस ऑफ मोलेक्यूल। मतलब मोलेक्यूल में जो डिसऑर्डर हो जाती है, जो ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो एंट्रोपी कम होगी, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी जो रहती है, अगर आपके सिस्टम को हीट ऐड कर दी तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी, अगर हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, अगर हीट रिमूव हो जाती है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी मतलब क्या हो गया, डी एस, ओके, डी एस, ओके। सो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू अपॉन टी, डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू अपॉन टी, ओके। आपको अभी क्या क्या ध्यान में रखना है मैंने बताया था, फॉर्मूलेस हीट का एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, हीट का एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, ओके। सेकंड इंटरनल एनर्जी एम सी वी डी टी, ओके। उसके बाद वर्क डन पी डी वी, बराबर है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एंट्रोपी का, एंट्रोपी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो ये वैल्यूज हमें याद रखने हैं। और एक फॉर्मूला था एंथैल्पी वाला, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, यू प्लस पी वी,
बराबर है। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला हमेशा mCp/dt, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आता है mCp/dt। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस।